Hello friends. Today's our topic is performance parameter of induction motor. Up till now we have gone through the basic construction and working principle of the induction motor, and in last session we have seen the how the rotating magnetic field is generated and how rotor start rotating. In today's lecture we will see the performance parameter of the induction motor. So let's start with that. First parameter is slip. uh, so first parameter, that is slip. Now we have already seen that induction motor is never run at synchronous speed. Induction motor is run below the synchronous. The synchronous speed is nothing but a rotating magnetic field speed that we have seen. So the speed of the rotor is always less than the synchronous speed. The speed of rotor, that is always less than the synchronous speed. So the difference is generated between synchronous speed and actual speed. The difference is generated, and that difference is known as a slip. So if we see the mathematically how it look like, so slip in ns is your synchronous speed and n is your actual speed, where ns is nothing but a 120 f by p, synchronous speed of rotating magnetic field. So the difference of these two, difference of this ns and n, is known as a slip. The difference of ns minus n is known as slip, and the percentage slip is given by this ns minus n upon ns, not n, but it's a ns minus n upon ns. Okay, and percentage slip you can find from this equation. So in induction motor, the slip at full load varies at about in the range of 2%, okay, to 5% we can say. Okay, so that is a slip. So now this is the IMP equation we can say. Now second part is a frequency of a rotor, voltage and current. Now the frequency of current and voltage in stator is same as the supply frequency. जो सप्लाई में हम दे रहे हैं वही स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन f इक्वल टू पी एन एस बाई 120, एंड दैट्स कम फ्रॉम एन एस इक्वल टू 120 f by p. So एन एस इक्वल टू 120 f by p. So from that you can find the supply frequency. Now as supply is given and rotor start rotating, so rotor frequency is different from the stator frequency. So what is the rotor frequency? Now this is supply frequency and we can say it's the stator frequency. Now as the rotor start rotating, so the rotor frequency from this we can say is p, and the difference of that speed ns minus n, where ns is a synchronous speed, means magnetic field speeds, and n is your rotor speed. So rotor frequency we can write like this from this equation, p ns minus n upon 120. okay, डिफरेंस जो स्पीड का है मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड का, वो इसमें ऐड हो, तो रोटर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई here multiply and divided by ns, so I can write ns minus n upon ns upon ns. So I can write this fr upon f equal to ns minus n, where ns minus n upon ns is your slip. So finally I can write the rotor frequency is nothing but a slip into stator frequency. Okay, so this is again IMP equation. So rotor frequency is
nothing but a slip into stator frequency. This is only when rotor is in the form of rotating. जब रोटर रोटेशन में होता है तभी उसकी फ्रीक्वेंसी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो रहा है. इफ इन द स्टॉप कंडीशन मीन्स रोटर इज इन not in the rotating form, at that time rotor frequency equal to stator frequency. So when rotor is in the stop condition, so finally we can say the rotor speed is 0. तो slip equal to क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा because n equal to 1. so finally slip equal to ns upon ns. so finally slip 1 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में fr equal to f ही हो जाएगा. So finally we can say at standstill conditions rotor frequency equal to stator frequency, but in running condition rotor frequency equal to stator frequency into sleep. Okay, so here it is given. So rotor frequency is nothing but a slip into stator frequency, or we can say supply frequency. Now at standstill means when rotor speed is 0. So at that time we can say s equal to ns minus n upon ns equal to 1 because n equal to 0. Put the value of n equal to 0 here. So finally you can say s equal to ns upon ns and that is equal to 1. Now put the value slip equal to 1 here. So rotor current frequency क्या हो जाएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू व्हेन रोटर is in standstill position, means rotor speed is 0. Okay, so when rotor is driven at a synchronous pace. now अब ये सोचो कि अगर रोटर की स्पीड मीन्स n इक्वल टू में ns कर देता हूँ, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड जितनी कर देता हूँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह, तो क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू n इक्वल टू ns. तो ns माइनस n ns, सो ns माइनस ns दैट इज इक्वल टू, तो आई कैन से स्लिप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. स्लिप 0 हो गया, सो आई कैन से रोटर फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट वी कैन से 0 से कहाँ तक वेरी हो सकती है, सॉरी वेराइज, हाँ 0 से 1 की वैल्यू जब स्लिप की वैल्यू जब फ्रॉम 0 से 1 होगी तभी रोटर फ्रीक्वेंसी वेरी हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ रोटर करंट. नाउ रोटर करंट, for rotor current we have some special indications. Okay, so here we can say E2 is a E2 is nothing but a E2 is a EMF induced per phase of not stator, it is a rotor at standstill condition. So E2 equal to EMF induced in rotor at standstill condition. Okay, R2 is a rotor resistance, rotor per phase resistance. Then X2 is a reactance per phase of rotor at standstill. So I can write X2 equal to 2 pi Fl. ये सारी वैल्यू कब की है, जब रोटर रोटेशन में नहीं है तब. ओके, तब की बात है. सो Z2 इम्पीडेंस आई कैन से रोटर इम्पीडेंस Z2 जो लिख रहे हैं दैट इज रिलेटेड विथ अ रोटर साइड. ओके, सो Z2 आई कैन राइट R2 plus jX2. Okay, so from this I can write I2 current, rotor current, and that is nothing but a V by R. So here it's a rotor voltage upon rotor resistance. So I2 equal to E2 upon total resistance, that is the impedance Z2. And finally we have power factor cos phi equal to R2 by Z2. So I can write this equation cos phi. So these are the equation, or these are the value of different parameter of rotor resistance, rotor current, rotor impedance, rotor voltage, rotor power factor.
at standstill condition. At standstill condition. Okay. Now let's say when rotor is in running condition. So what is the value at that time? So when rotor is in the running condition, so slip come in the picture. So at that time rotor EMF induced equal to S into E2. So slip is multiply in standstill condition, that is only E2, but here is S into E2. Rotor winding resistance, that is remain constant, and it is a R2 only. Now रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेस, जब स्पीड है तब एट दैट टाइम स्लिप पिक्चर में आएगा तो क्या होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी है यहाँ, तो 2 पाई एफ रोटर फ्रीक्वेंसी इंटू L2. अब मैं यहाँ रोटर फ्रीक्वेंसी तो रनिंग कंडीशन में क्या है, एस इंटू एफ है. सो नाउ पुट द वैल्यू, सो 2 पाई एस एफ इंटू L2. सो फाइनली आई कैन राइट एस 2 पाई एफ L2 इंटू एस. अब ये 2 पाई एफ L2 तो क्या है, रोटर रिएक्टेंस है एट स्टैंड स्टिल. सो फाइनली आई कैन राइट एस इंटू X2, तो X2 की वैल्यू है. ओके, सो ये हो गया रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस एट रनिंग कंडीशन. तो S मल्टीप्लाई हो गया, वी कैन से S इंटू X2. सेम वे आई कैन राइट द इम्पीडेंस फाइनली Z2S. 2S indicate running condition, okay, equal to R2 plus J SX2. okay, ये रनिंग कंडीशन का इम्पीडेंस है. एट स्टैंड स्टिल में क्या था, R2 प्लस JX2 ओनली. ओके, सो नाउ आई कैन फाइंड द रोटर करंट I2S इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस. तो वोल्टेज हमने क्या दिया है, SX2 है हमारा, वोल्टेज क्या है SE2 अपॉन Z2S. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Z2S हियर, ये रही. ओके, सो फाइनली नाउ यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल दिया है, हमने यहाँ से S कॉमन निकाला है. अगर आप S कॉमन निकालोगे जो वो S यहाँ से निकलेगा, फाइनली SS कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन विल बी E2 अपॉन R2 अपॉन S प्लस X2. एंड फ्रॉम दिस आई कैन राइट द पावर फैक्टर इक्वेशन. ओके, तो व्हेन रोटर इज इन रनिंग कंडीशन स्लिप कम इन द पिक्चर. एवरी इक्वेशंस में स्लिप मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, नाउ IMP पैरामीटर वी कैन से टॉर्क. सो बेसिकली टॉर्क in DC machine we have seen that torque is nothing but a product of current and flux. So here it is there, but one more parameter is added, and that is nothing but a power factor. Okay, so basic principle of motor is to convert electrical power into mechanical power, and that mechanical power, that is nothing but a torque. So that induced torque in the induction motor depend on which parameter, so that depend on the rotor current, rotor power factor and flux. So finally I can write the equation of torque, T induced torque or starting torque we can say. Okay, induced torque phi I2 cos phi 2, where I2 is a rotor current, and so this parameter is related with the obvious torque is related with the rotor side, because load is always connected on shaft and shaft is connected with a rotor. So torque is related with a rotor parameter. Okay, so flux, rotor current, rotor power factor. Okay, so flux, rotor resistance, rotor current and rotor power factor. But now the flux is फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स इंड्यूस जो वोल्टेज हो रहा है, तो रोटर में इंड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग में कौन से हो रहा है, E2. So finally I can write T start induced torque equal to E2 I2 cos phi 2. ओके, ये स्टार्टिंग टॉर्क है. ओके, जब रोटर रोटेटिंग नहीं हो रहा है एट दैट टाइम का टॉर्क है. ओके, सो इक्वेशन दैट वी हैव, T induced torque equal to
इज प्रोपोर्शनल टू E2I2 cos phi 2. नाउ प्रोपोर्शनल अगर निकाल देते हैं तो आई हैव टू पुट सम कांस्टेंट. तो फाइनली इंड्यूस्ड टॉर्क इक्वल टू K E2I2 cos phi 2 वेयर K इज अ कांस्टेंट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I2 एंड cos phi 2 इज अ cos phi 2. तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? I2 इज नथिंग बट E2 अपॉन Z2 और ZS. एस की वैल्यू यहाँ 1 कंसिडर करनी है. एस की वैल्यू बिकॉज स्टैंड स्टिल पोजिशन की बात कर रहे हैं हमें, तो एस की वैल्यू यहाँ कंसिडर 1 ही करनी है. सो विच आई हैव रिटन एट द एंड द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड इज कॉल्ड स्टार्टिंग टॉर्क. एंड एट द टाइम स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर स्लिप की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है? एस की वैल्यू 1 कंसिडर करनी है अभी यहाँ. तो एस नहीं है ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो यहाँ. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I2 and cos phi 2. So that is E2 upon ZS, R2 upon ZS. Now put the value of ZS. So I can write, अभी S consider नहीं करना है, S equal to 1 है. So I can write this equation. So finally, if I merge this equation, तो finally final starting torque I can write K E2 square R2 upon R2 square plus X2 square. S की वैल्यू स्लिप 1 है यहाँ, भले मैंने यहाँ रखा हुआ है, बट एस की वैल्यू कई बुक में नहीं दिया होगा. ये एस इक्वल टू 1 है यहाँ. ओके, सो दिस इज़, अगर नहीं रख रहे हो तो भी ठीक है बिकॉज स्टार्टिंग इंड्यूस्ड टॉर्क है तो स्लिप आएगा ही नहीं वहाँ. ओके, सो दिस इज़ अ स्टार्टिंग टॉर्क. दैट इज न्यूटन इनटू मीटर. नाउ अब स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब जब होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस. विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल, दैट डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0 कर देते हैं. सो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता है और दैट इज स्टार्टिंग, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क. नाउ सो लेट कंसिडर इन दिस इक्वेशन दैट पुट द वैल्यू ऑफ टी स्टार्टिंग. तो टी स्टार्टिंग अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट ले लूँ प्रीवियस इक्वेशन में, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू R2, अगर तो आई कैन राइट DTS अपॉन DR2 इक्वल टू K इन ब्रैकेट. इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, बिकॉज ये पहले R2 का हो, K का हो कांस्टेंट वैल्यू का हो जाएगा, एंड माइनस नीचे वाले का होगा. पहले ऊपर वाले का किया R2 का, तो 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर माइनस अब नीचे वाले का हो जाएगा. सो आई कैन राइट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ओनली R2 का. फिर क्या होगा? ओनली R2 का होगा. सो दैट इज़ 2R2 इंटू ऊपर वाला जो R2 है वो. ओके, नाउ एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन फॉलो करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0. सो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज़ को इस साइड ला देते हैं, इक्वल टू 2R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो फाइनली ये स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, ये कट हो जाएगा, तो ये पोजीशन ये कट हो जाएगा, ये उड़ जाएगा. नाउ यहाँ 2R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर बचा, तो ये R2 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन आया हमारे पास. सो फाइनली आई कैन राइट R2 स्क्वायर प्लस X2 एंड फाइनली आई कैन राइट R2 इक्वल टू X2. सो दिस इज़ द कंडीशन. ये कंडीशन है किसके लिए? टू गेट द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क. सो मैक्सिमम स्टार्टिंग, सो द starting torque of induction motor will the maximum when rotor circuit resistance per phase equal to standstill rotor reactance per phase. rotor resistance equal to rotor reactance हो जाएगा. At that time we got maximum starting torque. Okay, so this is the condition for that. Now next topic, that is now torque in the form of running condition. जो अब till now we have seen the torque at standstill condition, when rotor rotation position में नहीं था. ओके,
सो अब रोटर रोटेशन में आएगा तो कौन से पैरामीटर चेंज होगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर रनिंग टॉर्क में जो E2 था वो SE2 हो जाएगा, और नीचे वाला जो Z फॉर्म में था उसमें भी X वाला टर्म था वो उसके साथ S मल्टीप्लाई स्लिप पिक्चर में आ जाएगा. सो आई कैन राइट रनिंग टॉर्क डायरेक्टली KSR2 E2 स्क्वेयर अपॉन R2 स्क्वेयर प्लस SX2 होल स्क्वेयर. ओके, सो हियर वी हैव सम वैल्यू ऑफ S. स्लिप की कोई वैल्यू होगी, ये रनिंग कंडीशन में है. और मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कब मिल गया, जो पिछली बार किया वही. सो मैक्सिमम टॉर्क भी कब मिलेगा, लास्ट टाइम मैक्सिमम टॉर्क कब मिला, कंडीशन क्या थी, रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस. तो इसमें क्या होगी, स्लिप ऐड हो जाएगी. तो फाइनली आई कैन से कि मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कब मिलेगा, व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर रिएक्टेंस. सो आई कैन से दिस इक्वेशन लाइक दिस. ये इस तरह फिनोमिना होगा, ये होगा. सो फाइनली आई कैन से R2 इक्वल टू SX2 होगा, R2 इक्वल टू SX2, तब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. ओके, और वी कैन से स्लिप इक्वल टू R2 अपॉन X2. इस तरह भी हम लिख सकते हैं. ये कंडीशन है मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की. ओके, ये मैक्सिमम रनिंग टॉर्क. तो मैक्सिमम रनिंग नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इक्वल टू X2 इस इक्वेशन में हम मिलेंगे तो मैक्सिमम रनिंग टॉर्क का इक्वेशन मिल जाएगा. तो पुट द वैल्यू ऑफ, सो SX2 की जगह हमने R2 रख दिया है. ओके, सो नाउ फ्रॉम दैट 2R2 1R2 गया है. ओके, सो फाइनली आई कैन हैव दिस इक्वेशन. ओके, तो अब मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिल रहा है. अब मैक्सिमम रनिंग टॉर्क जब मिल रहा है उस स्लिप को हम मैक्सिमम स्लिप बोलेंगे. तो मैक्सिमम स्लिप कब हो रहा है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है. तो एट दैट टाइम स्लिप क्या होगा, मैक्सिमम. सो आई कैन राइट डायरेक्टली मैक्सिमम स्लिप इक्वल टू R2 अपॉन X2. एट दैट टाइम ही हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, तो मैक्सिमम स्लिप भी हमें मिल गया. सो नाउ फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क. सो स्पीड भी हमें मैक्सिमम टॉर्क पर जो स्पीड हो रही है वो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी. ओके, NM इक्वल टू 1 माइनस, अब स्लिप मैक्सिमम बताया दैट्स वाई 1 माइनस S मैक्सिमम NS. ओके, नाउ दिस विल शो द रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क. ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क. ओके, नाउ तो दोनों स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क को डिवाइड किया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क को डिवाइड किया हुआ है. सो आई गॉट द इक्वेशन लाइक दिस, स्टार्टिंग टॉर्क का और मैक्सिमम टॉर्क का. सो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ जो पैरामीटर कैंसिल हो रहे हैं, तो आई गॉट इक्वेशन रेशियो लिया हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का. ओके, सो आई गॉट 2R2 X2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. ओके, okay, now divide this equation by X2 square. Okay, so I can got T starting upon T maximum, okay, 2R2 X2 upon X2 square upon R2 square X2 square upon X2 square. Okay, so यहाँ से एक X2 निकल जाएगा, तो आई कैन हैविंग दिस इक्वेशन 2R2 अपॉन X2 स्क्वायर. और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें है X2 यहाँ डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, R2 स्क्वायर अपॉन X2 स्क्वायर. सो ये पोर्शन निकल जाएगा. सो माय फाइनल इक्वेशन इज 2R2 अपॉन X2 अपॉन R2 अपॉन X2 होल स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब मुझे पता है कि भाई R2 अपॉन X2 तो क्या है, मैक्सिमम स्लिप है. ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ओके, तो T स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन T मैक्सिमम टॉर्क क्या मिलेगा मुझे, 2, ये वाले में स्लिप रख दिया मैक्सिमम स्लिप अपॉन ये भी मैक्सिमम स्लिप, तो मैक्सिमम स्लिप स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो ये रिलेशन शो करता है मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क. Same way, this will show the relation between full load torque and maximum torque. Okay, so we have a full load torque equation
and maximum torque, same phenomena we have applied. Okay, we have taken the ratio of that, now divided by again x2. So I got this equation in the form of maximum slip. So this will give the relation between full load torque and maximum torque. Okay, same phenomena is here. Okay, okay, and last we have a effect of change in supply वोल्टेज. ये मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है. सो स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है. इसमें अगर हम डिफाइन करें तो के की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है. R2 रोटर रेजिस्टेंस वो भी एक कोई फिक्स वैल्यू पे ही होगा. सो अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, सो R2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट. अब x2 क्या होगा एट स्टार्टिंग में तो F इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है. मीन्स इंडक्टर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स रिएक्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी. सो x2 इज अगेन दैट इज रिमेन कांस्टेंट. सो सारे टर्म कांस्टेंट है. कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं है, E2 ओनली. तो आई कैन राइट टी स्टार्टिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, E2 स्क्वायर. E2 मीन्स वोल्टेज पे. तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V2 स्क्वायर आई कैन राइट. ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू इज IMP equation, we can say IMP relation, effect of change of supply voltage on torque, we can say. Okay, is per starting torque proportional to voltage, supply voltage square. Okay, okay, so I hope you have learned and you have understood the performance parameter of induction motor. Okay, now lastly we have some assignment question and you have to give the answer of this questions. If the slip of induction motor is 1, then what is the rotor speed, then effect of change in supply frequency on the rotor speed, motor की स्पीड पे क्या होता है, effect of change in supply frequency on torque. टॉर्क पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो टॉर्क पे क्या असर होगा. ओके, और ये रिलेशन बताना है. और मैक्सिमम कंडीशन, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कंडीशन क्या है उसका डिराइव इक्वेशन करना है. ओके, ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिए हैं. ओके, सो आई होप यू हैव नो डाउट. ओके, ओके, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन and submit your assignment. Okay, thank you very much.